Good morning, sir. I am Mayank Gaurav, and today I will be explaining the topics of inner product, norm of a function, distance function, and the tensor product. So let us start with the inner product. So basically, the inner product is nothing but the dot product. Inner product is nothing but a dot product of an it is a dot product in an of an from in a vector space. Dot product of any two vectors in a given vector space. So now, like we denote, you would ask why do we need inner product when we already have an easier dot product, like just multiply I cap in I cap plus j cap and k cap. We have all that things. So why do we need just multiply I with I, j with j, and k with k? We get it very easily. So why do we need this inner product thing? So inner product is basically for easier for complex numbers. Like if we take vectors like 1 plus I times I cap, how do you do? How do you multiply? Find a dot product of that thing. It is not as simple as we did it for the normal, means the real numbers. So we need basically the inner product for finding the or magnitudes in this cases where the complex vector spaces are involved. So now this is basically denoted by v1, v2. This is how we denote the inner product. अब इसको डिनोट तो ऐसे कर दिया, तो अभी इसमें हम लोग इसको इक्वेट कैसे करेंगे? तो इसको इक्वेट करने के लिए v1 डैगर टाइम्स इंटू v2 होता है. तो इधर आया, आप पूछोगे डैगर क्या है. नाउ व्हाट इज डैगर? डैगर यहाँ पे जो है, डैगर इज द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. डैगर इज द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है ये, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. The dagger is the conjugate transpose. So how do we find the conjugate transpose? Transpose का मतलब सबको पता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं? ऐसा मैट्रिक्स A1 A2 A3 ऐसा मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज हो गया, ये ट्रांसपोज हो गया, ऐसे कर दिया इसको A1 A2 A3, ये हो गया ट्रांसपोज, राइट? So now how do we do what do you mean by conjugate transpose? So now transpose is this. Now what will be the conjugate? Now in the case of real numbers, हम लोग conjugate जो रहता है वो like conjugate जो रहता है actually में केवल और केवल complex number में difference create करता है. Because conjugate जो हम बोलते हैं तो वो I वाला जो imaginary part है उसका sign change कर देता है. जैसे 1 plus I जो था ये 1 minus I हो जाएगा, right? So अभी अगर हम लोग रियल नंबर बोल रहे हैं तो रियल नंबर में अगर हम लोग करें भी तो 1 2 3 है तो 1 2 3 ही रह जाएगा. तो लाइक कॉन्जुगेट इसमें रियल नंबर्स के केसेस में कोई फर्क नहीं दिखता है. इसलिए वी कैन आल्सो से दैट जब अगर हम लोग वेक्टर 1 और वेक्टर 2 का इनर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, सो इट इज v1 into ट्रांसपोज into v2 and it is also equal to v1, v2 is also equal to v1 dagger time into v2. This is for real spaces, real vector spaces, and this is for complex vector spaces. Right? So now this is about the inner product. Now what is the norm of a vector? Norm of I have norm आता है, right? Norm क्या है? Norm of a vector. Norm. What is the norm of a vector? हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी वेक्टर का डिस्टेंस निकालते हैं, राइट? तो norm of vector is nothing but that length of the vector. उसी वेक्टर का लेंथ जो होता है उस वेक्टर का नॉर्म होता है. So now इसके कैलकुलेट कैसे करते हैं? नॉर्म को मान लो हम लोग डिनोट करते हैं v से. Now how do we calculate it? It is calculated as under root of inner product. Under root of inner product. That's it. यही है norm of vector. Norm of vector is nothing but the under root of inner product. So it is written like v, v.
this is the inner product, right? So now let us take some examples to understand it better, right? Examples are also necessary to understand any concept. So now we are going to take an example. Let us start with the question of which includes only the real numbers. So V1 is equal to, assume 1, 1, 2 and 3, it's like this, and V2 assume it is 3, 4, 1. Alright. So what do you have to find? What we have to find is, we have to find the V1 comma V2. That is the inner product we have to find, right? So inner product का कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना? V1 into V2 का सिंपल तो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, is equal to V1 dagger into V2. So now अभी हमें V1 का dagger लेना है, V1 का dagger. V1 क्या है? V1 is 1, 2, 3. So now what would be its dagger? That is conjugate transpose. अभी मैंने बताया कि conjugate transpose में जो conjugate part है उधर complex numbers के लिए मायने देता है. So now we can simply write V1 dagger is equal to, just transpose it, it's enough. For any real number just transpose it and the conjugate transpose is the same. So ये हो गया V1. अब यहाँ पे हम लोग equate कर लेते हैं values put करके 1, 2 and 3 and here is 3, 4 and 1. Right. So now let us start multiplying. जैसे हम लोग multiply करते हैं, कैसे करते हैं? इसको इसके साथ multiply किया, 3 plus 8 plus 3. How much? It is 14. 14 is nothing but the inner product of V1 comma V2. That's it for the inner product. इतना ही है एक सादा रियल नंबर की इनर प्रोडक्ट के लिए. हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. इस बार this time it will be complex numbers. So now complex numbers is also similar, but it would take the conjugate इसमें आता है, right? ये तो conjugate आएगा, like V1 is equal to let us take only one. Okay, let us take only one. हम लोग इसमें norm भी इसी में कर लेते हैं. Let us do norm in this one only. Alright. So we have to find norm of V1. Norm of V1 find करना है. Now what do we do? Norm क्या होता है? Norm is nothing but under root of inner product of V1 comma V1, right? अगर V1 comma V1 निकालना है तो V1 comma V1 निकालना है तो इधर क्या है? V1 क्या है? What is V1? V1 is 1 minus 3, 4i, right? This is V1. No, this is not the V1. Why? Because here is a transpose का sign आएगा, right? You see that? That's the transpose का sign है. तो V1 actually में है 1 minus 3i, 3 और 4i. That is V1. अभी इसका डैगर क्या होगा? Because we know norm निकाल रहे हैं हम लोग, right? Norm बराबर under root of V1 dagger into V1. So right, so we have to find a norm. इसका dagger क्या होगा? Dagger is conjugate transpose again. So dagger is transpose करो. ट्रांसपोज होने के अलावा इसमें क्या है? अभी कॉन्जुगेट आएगा, बिकॉज हियर यू कैन सी दिस थिंग इज हियर आई. सो अगर कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट होगा, क्या होगा? साइन बदल जाएगा आई के साथ. तो 1 plus 3i इधर 3 के 3 वैसे ही रह जाएगा एंड minus 4i, राइट? दिस इज द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. सो नाउ let us write multiply. So it is under root, let's keep it this way, 1 plus 3i, 3 and minus 4i, and here is 1 minus 3i, 3 and plus 4i here it is. मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करने में क्या आता है? मल्टीप्लाई किया तो
1 minus 3, 1 plus 3i. Okay, so it is 1 plus 3 square. 1 square plus 3 square. Is it? Is it? Yes, it is. Plus 3 square. Plus 4 square. आप बोलोगे सर माइनस माइनस साइन तो माइनस माइनस तो आई स्क्वायर भी है ना. आई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन. राइट, यू सी दैट. दिस इज ऑल्सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस. पता चला इधर माइनस साइन डाल के नहीं आना है हम लोग को. राइट, सो इट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 16. It is 25. It is 10. Implies that the whole thing says चीख के कह रहा है ये बेटा v1 का जो है ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 35. That is the answer. Right. तो हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे. क्या क्या सीखे? नॉर्म हो गया. नॉर्म क्या होता है? नॉर्म इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर. किसी भी वेक्टर का जो लेंथ होता है उसका नॉर्म कहलाता है. नॉर्म कैसे लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ inner product. Or inner product is another way to denote a dot product of two vectors in the same space, same vector space में जो उसका product होगा that is the inner product. Right. So now ये हो गया. इसको हटा दो. इसका कोई काम नहीं. हम क्वेश्चंस नहीं. अगला कॉन्सेप्ट करेंगे. अगला कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फंक्शन. डिस्टेंस फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन क्या होता है? डिस्टेंस फंक्शन इज ऑलराइट. सो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है? हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इज नथिंग बट उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है. सो नाउ अगेन विद टू वेक्टर्स v1 एंड v2. टू वेक्टर्स, इन दोनों के बीच की दूरी इज नथिंग बट इन दोनों के बीच की दूरी जो है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है दैट इज द डिस्टेंस फंक्शन. डिस्टेंस. राइट. तो डिस्टेंस फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस हम लोगों ने डिस्टेंस कैसे किया? लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ वेक्टर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ किसी पॉइंट का? लेंथ क्या होता है? वेक्टर का लेंथ क्या होता है? उसका ओरिजिन पॉइंट से उसकी उस एंड पॉइंट तक जो लाइन गई है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. यानी ओरिजिन पॉइंट से उस पॉइंट तक जो रहता है डिस्टेंस दैट इज लेंथ. तो अभी v1 और v2 की दूरी है तो हम लोगों ने क्या चेंज हुआ है? Change is nothing but v1 जो v1 था वो पहले नॉर्म ऑफ वेक्टर में 0 था. राइट, यू अंडरस्टैंड? ये चीज तो थी नॉर्म में, नॉर्म के वक्त 0 थी. 0 इन नॉर्म. लेकिन अभी नॉन जीरो क्वांटिटी है. अभी भी 0 रह सकती है लेकिन नाउ इट इज नॉन जीरो बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर पॉइंट्स. राइट. तो अभी चेंज क्या होगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू सेम चीज सर अंडर रूट ऑफ v1 माइनस v2 कॉमा v1 माइनस v2. इनर प्रोडक्ट ही करना है. वापस क्या पका रहे हो? राइट. सो इनर प्रोडक्ट ही दोबारा हम लोगों ने किया यहाँ पे. दैट इज द डिस्टेंस. क्वेश्चन इसमें ऐसा कुछ चेंज तो हुआ नहीं क्वेश्चन में. Let's take a question. मान लो distance between v1 is equal to छोटा सा लेते हैं रियल नंबर्स के साथ, छोड़ो वेक्टर के साथ ही ले लेते हैं. 1 3 और 4 माइनस 3i एंड v2 is equal to 2 माइनस i 4 और 1 प्लस 3. ऑलराइट. इसका डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच का, तो डिस्टेंस निकालना है हमें. सो नाउ लेट अस डिस्टेंस क्या होगा? यहीं पे लिखा हुआ है. तो डिस्टेंस फंक्शन पे हम v1 माइनस v2 का इनर प्रोडक्ट करते हैं. v1 माइनस v2 का इनर प्रोडक्ट करते हैं. व्हाट इज v1 माइनस v2? लेट अस डू v1 माइनस v2 का इनर प्रोडक्ट. So v1 minus v2 क्या है? v1 minus v2 is equal to 1 plus I minus 2 plus I v minus 4 और 4 minus 3I minus 1 minus. That is it. यही है.
क्या हो गया, 1 हो गया -1 प्लस 2i, ये हो गया -1 और ये हो गया 3 - 4i। यू गॉट इट, मिल गया। अब इसको वापस इनपुट करते हैं, ये क्या होगा, नाउ इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 माइनस v2 डैगर इंटू v1 माइनस v2, यही होगा। भाई ये पूरा एक टर्म है, तो ये एक टर्म हो गया, राइट। सो नाउ इसका मैं डायरेक्ट डैगर लिखते हैं, तो अंडर रूट ऑफ -1 - 2i -1 3 + 4i इंटू है -1 + 2i -1 और 3 - 4i। नाउ अगेन मल्टीप्लाई एंड ऐड, क्या, अंडर रूट ऑफ कितना 1 + 4 + 1 + 9 + 16, करो ऐसा कम करो यार, 25, दिस इज 25, दिस इज 5, दिस इज 1, टोटल हो गया 31। दिस you have got your answer. You see this? This is the distance between V1 and V2. Got it, sir? All right. So अगला टॉपिक हम लोग का आता है टेंसर प्रोडक्ट. Now we have to go to the tensor product, right? We'll move towards the tensor product. So टेंसर प्रोडक्ट क्या है? टेंसर प्रोडक्ट डॉट, ये क्या था? इनर प्रोडक्ट. व्हाट वाज इनर प्रोडक्ट? इनर प्रोडक्ट वाज द डॉट प्रोडक्ट इन द से ऑफ टू वेक्टर्स इन द सेम वेक्टर स्पेस. उसका नॉर्म ऑफ फंक्शन क्या था? नॉर्म ऑफ फंक्शन वाज द लेंथ ऑफ द फंक्शन, लेंथ ऑफ द वेक्टर. व्हाट वाज द डिस्टेंस फंक्शन? डिस्टेंस फंक्शन क्या था? डिस्टेंस फंक्शन दो वेक्टर्स के बीच की कितनी दूरी थी, सेम वेक्टर स्पेस में चल रहा है. तो अभी बताओ टेंसर प्रोडक्ट क्या होगा? टेंसर प्रोडक्ट इज दो कंबाइनिंग, एक ऐसा तरीका जिसमें हम, जिसकी वजह से हम लोग दो वेक्टर स्पेसेस को कंबाइन कर देते हैं. दो वेक्टर स्पेसेस को कंबाइन करते हैं थ्रू द टेंसर प्रोडक्ट. नाउ टेंसर प्रोडक्ट क्या हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? टेंसर प्रोडक्ट मान लो tensor product is V1 is one complex space, V2 is another space. Tensor product easy. और लोग इसको शो कैसे करेंगे? कैसे? एक्चुअली में ये थोड़ा सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से एक्चुअली बहुत अलग है. सो मान लो ये है A1 A2, छोटा सा ही लेते हैं बिकॉज एंड V2 जो है मान लो V1 है, V2 है, V3 है, V4 है. अच्छा है V2. सो राइट. सो इन दोनों का भी टेंसर प्रोडक्ट बराबर है. इसको अब कैसे लिखेंगे? जैसे वो देखो, इट इज ऑल्सो नॉट सो इजी. A1 को इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. A1 इज नाउ गोना एक्ट लाइक ए स्केलर, V2, V3 and V4. And similarly, A2 is going to act like another scalar quantity. Right? Here you go. ये देख रहे हो? ये और ये जो है, ये दोनों स्केलर्स की तरह चल रहे हैं और ये पूरा का दोनों को कंबाइन हो गए ऊपर और नीचे. एज द पैटर्न वाज इन द ओरिजिनल V1, उसी पैटर्न में ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्केलर्स की तरह. So now the final vector space would be V1 A1, V2 A1, V3 A1, V4 A1, V1 A2, V2 A2, V3 A3 and V4 A2 and V0 A2. Now look at it. 1 × 2 का मैट्रिक्स, 2 × 2 का मैट्रिक्स एंड दिस इज 2 × 4 का मैट्रिक्स. लुक एट दैट. यही है इनर प्रोडक्ट, टेंसर प्रोडक्ट.
जैसे प्रोडक्ट भी हो गया हम लोग का. नाउ वी विल गेट टू take one question, although it's, I don't think it's missing. We'll take one question out of it. So now one question, कोई भी मानो question is दो वेक्टर स्पेस ही कंबाइन होगा हम लोगों को करना है. मान लो एक वेक्टर स्पेस है 1 और 3 की, दूसरी वेक्टर स्पेस है रियल वेक्टर स्पेस चल रही है, दूसरी वेक्टर स्पेस है 4 और 5 की. ओके, सो या मान लो छोड़ यही ले लो, हम लोग को इसे कंबाइन करना है. व्हाट वी हैव टू फाइंड इट, वी हैव टू फाइंड टेंसर प्रोडक्ट करना है. टेंसर प्रोडक्ट, सो नाउ v1 into v2 is equal to 1 into 4 5, oh sorry 4 by 5 ही 4 5 है. ऑलराइट, 3 के साथ भी 4 5 इज इक्वल टू लंबा खींच लो 4 5 3 4 12 3 5 15. There you go, नया वेक्टर स्पेस है ना, नया वेक्टर स्पेस. So now this is also one topic we have finished. Now to the last topic. और एक और टॉपिक है, छोटा सा इंट्रो दे रहा हूँ केवल. असेंबलिंग systems. So assembling system. What is assembling system? क्यूबिट्स मालूम है क्या होता है? जो क्वांटम कंप्यूटर्स में जो बिट्स यूज होती है, जो मेमोरी वैल्यू यूज होती है, वो क्यूबिट्स होती है. सो नाउ क्यूबिट्स बेसिकली दो क्यूबिट्स हम लोगों के पास है. दो बेसिक क्यूबिट्स होते हैं. एक होता है केट 0 का क्यूबिट होता है, केट 1 का क्यूबिट होता है. राइट, these are our two basic qubits. ओके, तो इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 1 0, इसका वैल्यू 0 1 होता है अगर मैट्रिक्स फॉर्म में रहा तो. ऑलराइट, असेंबलिंग सिस्टम क्या है? असेंबलिंग सिस्टम इज नथिंग बट मल्टीपल क्यूबिट्स को, कई सारे क्यूबिट्स को, मल्टीपल क्यूबिट्स को कंबाइन करना टू फॉर्म अ लार्ज क्वांटम रजिस्टर. एक क्वांटम रजिस्टर बना रहे हैं हम लोग. एक बहुत बड़ा क्वांटम रजिस्टर बनाने के लिए हमने कई सारे क्यूबिट्स को ऐड किया. नाउ व्हाट इज, किसी भी कितने स्टेट्स होते हैं किसी क्यूबिट में, कैसे पता चलता है? तो वी हैव अ फार्मूला फॉर 2 to the power n. n क्या है? n इज द नंबर ऑफ क्यूबिट्स. सॉरी, 2 to the power n से पता चलता है ना. तो 2 to the power n क्या है? अगर मान लो दो है हमारे पास जो लगा हुआ है, वो होता है फिर. थैंक यू एवरीवन, दैट वाज इट.